And now we go to the beautiful other book, which is Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. और उसमें आज तो एक्सपीरियंस है ना, डॉक्टर क्विम्बी की टीचिंग्स का एक्सपीरियंस है जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो हम मेथड्स पढ़ रहे हैं अलग अलग मैनिफेस्ट करने के, पावरफुल बनने के, और ये जानने का कि हमारे अंदर भी वही शक्तियां हैं जो भगवान में होती हैं, जो हमको अभी तक पता नहीं था। तो हमारे अंदर वही शक्ति है जो भगवान की होती है। सो इस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज हम गॉड से प्रे करते हैं। तो जब बहुत हालत वैसी होती है तो लोग गॉड से प्रे करने जाते हैं, कभी कभी मन्नत मांगने जाते हैं, है ना। कभी कभी जैसे दरगाह शरीफ जो अजमेर में है, वहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं किसी मन्नत के साथ। और दरगाह शरीफ में कभी आप गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि इतने सारे धागे बंधे रहते हैं और उसको खोलने भी जाना पड़ता है। बट ऐसे माना जाता है कि आप कोई सा भी धागा खोल सकते हो, जरूरी नहीं कि आप वाला ही हो, बिकॉज हो सकता है आप वाला कोई और ऑलरेडी खोल के चला गया है ना। तो इस तरह से तो मतलब भगवान से हम तभी प्रे करते हैं ना। अब इस किताब में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने समझाया है कि वही जो पावर है जिसके लिए आपको लगता था कि वो गॉड बहुत पावरफुल है, वहां जाने से ये हो जाता है, वो सेम पावर आपके अंदर है और जहां पे भी आप बैठे हो वहां पर है। अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पावर है वो वाली कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ, मैं वेदर वेदर चेंज कर सकती हूँ, है ना। मतलब इतनी पावर होती है हमारे अंदर लेकिन हमको पता नहीं होता। तो उसी का एक एग्जाम्पल हम आगे पढ़ते हैं। एंड या लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आरती इज रीडिंग, आरती गुप्ता, Yes, राइट? ma'am. Aarti या Gupta, ma'am, is reading. या Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Everyone. A cripple walk. Ma'am, am I audible? या वेरी क्लियर। A cripple walks. Dr. Phineas Parfoot Quimby, of whom we spoke previously in this chapter, used the absolute method in the latter years of his healing career. He was really the father of psychosomatic medicine and the first psychoanalyst. He had the capacity to diagnose clairvoyantly the cause of the patient's trouble, pains, and aches. The following is a condensed account of the healing of a cripple as recorded in Quimby's manuscripts. Quimby was called on a visit to a woman was called on to visit a woman who was lame, aged, and bedridden. He states that her ailment was due to the fact that she was imprisoned by a creed so small and contracted that she could not stand upright and move out. She was living in the tomb of fear and ignorance. Furthermore, she was taking the Bible literally, and it frightened her. In this tomb, Quimby said, was the presence and the power of God trying to burst the bands, break through the bonds, and rise from the dead. When she would ask others for an explanation of some passage of the Bible, the answer would be a stone that she would hunger for the bread of life. Dr. Quimby diagnosed her case as a mind cloudy and stagnated due to excitation and fear caused by the inability to see clearly the meaning of the passage of the Bible, which she had been reading. This showed itself in the body by her heavy and sluggish feeling, which would terminate as paralysis. At this point, Quimby asked her what was meant in the Bible verses. Yet a little, while am I with you, and then I go on to him that sent me. Ye shall seek me, and shall not find me, and where I am, thither ye cannot come. John 7:33 to 34, she replied that it meant Jesus went to heaven. Quimby explained what it really meant by telling her that being with her a little while meant his explanation of her symptoms, feelings, and their causes. That is, he had compassion and sympathy for her next momentarily, but he could not remain in that mental state. The next step was to go to him and sent us, which, as Quimby pointed out, was the creative power of God in all of us.
Quimby immediately traveled in his mind and contemplated the divine ideal, that is, the vitality, intelligence, harmony, and the power of God functioning in the sick person. This is why he said to the woman, I quote, "Therefore, where I go, you cannot come, for you are in your narrow, restricted belief, and I am in hell." This prayer and explanation produced an instantaneous sensation, and a change came over her mind. She walked without her crutches. Quimby said that it was one of the most singular of all his healings. She was as it were dead to error, and to bring her to life of or truth was to raise her from the dead. Quimby quoted the resurrection of Christ and applied it to her own Christ or health. This produced a powerful effect on her. He also explained to her that the truth which she accepted was the angel or idea, which rolled away the stone of fear, ignorance, and superstition, thereby releasing the healing power of God, which made her whole. सो इतना फनी सा एक्चुअली एग्जाम्पल साउंड कर रहा है। ये हमारी इंटरप्रिटेशन की बात होती है ना। जैसे अगर हम देखें तो हमारी भी श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है दैट कर्म किए जा फल की इच्छा न कर, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम बस कर्म करते रहो, फल तो तुम्हारा जो डेस्टिनी में लिखा है वही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा आपको। अगर आप अच्छे कर्म अपनी तरफ से कर रहे हो तो फल की इच्छा मत करो, बिकॉज फल आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आपने आम का बीज बोया है तो आम का ही पेड़ निकलेगा। अगर आपने बबूल का बीज बोया है तो आपको बबूल का पेड़ निकलेगा, है ना। ये उसका मतलब है कि बहुत अच्छे अपने कर्मों पे, कई लोग होते हैं ना कि मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहा हूं या मैं कर रही हूं लेकिन मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसलिए श्री कृष्ण ने बोला था ये कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, फल जरूर मिलेगा। भगवान के दरबार में बहुत ज्यादा है देने के लिए लोगों को। तो अगर आप अपने दिल को साफ रखो और अपने दिल से अच्छे से अपना 100% दो तो आपको जरूर से उसका फल मिलेगा। ये कहने का मतलब था। ये नहीं होता है कि कर्म करते रहो फल वही मिलेगा। तो ये इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस होता है। सेम थिंग इस लेडी के साथ था, है ना। अकेली रहती थी, बहुत एजेड थी, बुजुर्ग इंसान थी, और ये पैरालिटिक थी, खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो इनको ये था कि बाइबल का एक वर्स है जो, बिकॉज ये सब क्रिश्चियनिटी की इसमें बात करें तो बाइबल का एक वर्स है जो इनको इंटरप्रिट ही गलत हुआ था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि तुम जहां हो मैं तुम मुझे सीख भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे अलग हूं और तुम अलग हो। ये वो वर्स का मतलब था जो इसमें 4 लाइनों की वर्स दी है। वो इसका ये मतलब नहीं था कि तुम जहां हो मैं वहां नहीं आ सकता, मैं ऑलरेडी नहीं हूं। तो फिर डॉक्टर क्विम्बी जो थे वो बहुत अच्छे मेटाफिजिशियन थे अपने टाइम के। और मतलब जैसे उस दिन सोनिया जी ने बोला था ना, मैं तो उसकी क्वीन हूँ मैग्निफिसेंट आउटकम की। मैं मैग्निफिसेंट, मुझे तभी हंसी आ गई थी एकदम से पढ़ा जैसे उन्होंने कहा तुम्हें मैग्निफिसेंट आउटकम की, तो मैं क्वीन हूँ, है ना। जैसे मैं तो चैंपियन हूँ इस चीज की, इस तरह से बोल बोल के अब तो वो वैसी क्वीन हो गई क्योंकि उन्होंने इतने लोगों की एनर्जी भी ली है। तो वैसे ही डॉक्टर क्विम भी चैंपियन थे मेटाफिजिक्स के, मतलब साइकोसोमैटिक। वो किसी भी इंसान को यकीन दिला देते थे कि वो बिल्कुल हेल्दी है और वो इंसान हेल्दी हो जाता था। उनके अंदर ये पावर थी क्योंकि लास्ट लेग ऑफ हिस करियर में उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मेटाफिजिक्स से सरियल चीजें अचीव करी है अपने पेशेंट्स के लिए। मतलब उनके दिमाग के, इनके उनके माइंडसेट को चेंज करके किए, है ना। तो ये अब ये जो लेडी थी इन्होंने बताया कि डॉक्टर क्विम्बी के संपर्क में आई। अब इन लेडी ने जो क्रिपल थी, ये तो वॉक बिल्कुल उठ भी नहीं सकती थी क्योंकि वो पैरालिटिक थी। तो इन्होंने बोला कि देखो बाइबल में भी तो यही लिखा हुआ है कि जहां पे तुम हो मैं वहां पे आ नहीं सकता, और तुम मुझसे अलग हो और मैं अलग हूं। तो डॉक्टर क्विम्बी ने बोला ये नहीं लिखा हुआ था जीसस क्राइस्ट की कोर्ट में, ये कुछ और है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि तुम अगर दुखी हो, लेकिन मैं तो हेल्थ हूं, आई एम परफेक्ट, आई एम होल, आई एम हार्मोनियस, तो मैं कैसे आऊंगा। तो तुमको अपने अंदर परफेक्ट हेल्थ वाली फीलिंग लेके आनी है जिससे कि मैं तुम्हारे अंदर एक्टिवेट हो जाऊं, है ना। जैसे हम भी बोलते हैं, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था थैंक यू फॉर माई वेल्थ नाउ।
क्यूट सा छोटा सा सेंटेंस था वो, है ना? और वो बार बार बोल के उस पर्सन के पास पैसा आ गया। सिर्फ यही स्लीपी ड्राउजी स्टेट में बस यही बोलना, आई गिव थैंक्स फॉर ऑल माई वेल्थ नाउ, आई गिव थैंक्स फॉर ऑल माई वेल्थ नाउ। बस यही बोलना था एक सेंटेंस, और उसके बाद उसका लिटरली लाइक जैसे जिंदगी में पूरी तरह से लाइक एवरीथिंग चेंज्ड इन दैट पर्सन्स लाइफ, क्योंकि वो बार बार अपने स्लीपी ड्राउजी स्टेट में ये बोलते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये बताया उन्होंने कि ये लेडी जो थी ये मान के बैठी थी कि देखो, ये बाइबल बहुत फॉलो करती थी, कि देखो बाइबल में भी जीसस ने लिखा है कि वो हमसे अलग है और वो हेवन में चले गए, अब हम अलग हैं और वो हमारे अंदर नहीं आ सकते। और उसका इंटरप्रिटेशन डॉक्टर क्विम्बी ने उसको बताया कि ये इंटरप्रिटेशन है, वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। इसका ये मतलब है दैट पहले ही आप, आई गिव थैंक्स फॉर माई वेल्थ नाउ, जैसे आई गिव थैंक्स फॉर माई परफेक्ट हेल्थ नाउ, ये बार बार बोलो दैट आई गिव थैंक्स फॉर माई परफेक्ट हेल्थ नाउ, आई गिव थैंक्स फॉर माई परफेक्ट हेल्थ नाउ। जैसे हम भी करते हैं ना सुबह वाली प्रेयर्स में, दैट आई गिव थैंक्स और थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ एंड अ स्ट्रांग बॉडी। आपने देखा उसके बाद से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी सीम हो रही होगी, आपको हेल्थ बहुत अच्छी हो गई होगी, क्योंकि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम लगातार बोलते हैं दैट थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ एंड फॉर रोबस्ट हेल्थ एंड अ स्ट्रांग बॉडी। है ना? जब बॉडी स्ट्रांग होती है इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, सब अच्छा है। तो इस तरह तो तब गॉड एक्टिवेट होंगे ना। अगर मैं पूरे टाइम ये बोलती रहूंगी, ओ गॉड माई हेल्थ इज सो बैड, दिस इज हैपनिंग टू मी, दैट रिलेशनशिप सो बैड, माई हस्बैंड इज लाउजी, माई चिल्ड्रन डोंट स्टडी, माई दिस इज हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, पैसा भी नहीं आ रहा, तो फिर गॉड मेरे अंदर एक्टिवेट कैसे होंगे? कंप्लेन बॉक्स जो होता है उसके उस लाइफ में गॉड नहीं एक्टिवेट होते ना। सो आई डोंट वांट टू बी अ कंप्लेन बॉक्स, right? So I want to be that thank you for my robust health and a strong body. Thank you for, I give thanks for all my wealth now, right? I'm so lucky. I'm the queen of magnificent outcome. तो मैं ये बोलूंगी ना, तब भगवान आके बोलेंगे कि मेरा कितना प्यारा बच्चा है, ये पूरे दिन मेरा नाम ले लेके इस तरह से बोलता जा रहा है दैट मैं तो उसकी क्वीन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी लाइफ फुल टू एंजॉय करती हूँ, आई एम सो हैप्पी, success is coming to me now, money is coming to me now, all my relationships are fulfilling। अगर हम ये ऐसे बात बोलेंगे, तब जाके वो बाइबल का जो सेंटेंस लिखा हुआ था कि नाउ गॉड विल बी एक्टिवेटेड विद इन अस, हमारे अंदर आएंगे और हमारी जिंदगी वैसी ही होती जाएगी, क्योंकि वो गॉडली थॉट्स हम सोच रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइफ वर्ड थॉट्स। है ना? लाइफ वर्ड का मतलब ये होता है गॉडली थॉट्स, कि गॉड के दरबार में यही सारी चीजें, है ना? होल ही, हेल्थ, हार्मनी, लव, पीस, सक्सेस, वेल्थ, अमेजिंग रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस, चेयर, गुडविल। सो ये सारी चीजें जो होता है, तो डॉक्टर क्विम्बी ने यही चीज उस लेडी को समझाया कि वो ये बोल रहे हैं कि तुम पूरे दिन ये बोलती रहती हो कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मुझे ये है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, और ये मान के बैठ गई हो कि बाइबल के कोट में ये लिखा हुआ था कि गॉड मुझसे अलग है, गॉड तभी आया, मतलब गॉड अब हेवन चले गए हैं जीसस क्राइस्ट हेवन चले गए, और ये ऐसा नहीं है। तो उन्होंने समझाया, उसके बाद उस लेडी को यकीन हुआ कि मुझे अपनी बात, अपना थॉट प्रोसेस ऐसा करना है दैट आई एम हेल्दी, आई एम गुड। और फिर जीसस क्राइस्ट, उन्होंने जब ये समझाया सेंटेंस को, जो कोट है बाइबल का, तो वो लेडी चल पड़ी, उसको चलना आ गया, धीरे धीरे उसने शुरू किया, एंड देन शी स्टार्टेड वॉकिंग। इसीलिए इस टॉपिक का नाम था अ क्रिपल स्टार्ट्स वॉकिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। The decree method. Power goes into our word according to the feeling and faith behind it. When we realize the power that moves the world is moving on our behalf and is backing up our word, our confidence and assurance grow. You do not try and add power to power. Therefore, there must be no mental striving, correction, force, or mental wrestling. A young girl used the decree method on a young man who was constantly phoning her, pressing her for dates, and meeting her at her place of business. She found it very difficult to get rid of him. She decreed as follows: I release onto God. He is in his true place at all times. I am free and he is free. I now decree that my words go
forth into infinite mind and it brings it to pass. It is so. She said he vanished, and she has never seen him since, adding, it was as though the ground swallowed him up. Quote, thou shalt decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine on upon thy ways. Job 22 by 28. या सो ये फिर से एक एक्सपीरियंस है. लास्ट मेथड है डिक्री मेथड. इज इट बेसिकली मीन्स दैट गवर्नमेंट की डिक्री है ये कि इस तरह से होगा, या किसी के मर्डर का पनिशमेंट ये होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना डिक्री, तो इस तरह से. तो डिक्री मेथड का मतलब है कुछ अपना पावरफुल स्टेटमेंट अपने आप को दे दो और वो आपकी जिंदगी बन जाता है. और कभी भी मैनिफेस्टेशन कभी भी करनी होती है ना, तो उसमें फोर्स और कोएर्जन करने की जरूरत नहीं होती है. लाइक बार बार अगर हम एक ही बात करेंगे, इसका मतलब है बहुत रेजिस्टेंस है. फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि आपको किसी से बात करनी है तो आप जाके बोलो मैं तो इस बार दिखा के रहूंगी, मैं लाइक आई विल जस्ट गो एंड सिट एंड टॉक टू दैट पर्सन. ये सब करने की जरूरत नहीं होती है. आप अपने अपने ऊपर अपनी वाइब्रेशन से दूसरे का बिहेवियर चेंज कर सकते हो. इस पूरे चैप्टर में हमने ये पढ़ा है. उसमें था ना दैट अगर किसी को एडिक्शन भी आपको हटाना है, तो सोचो अगर आप रोज जाके अगर उसको बोलोगे कि क्या तुम रोज ड्रिंक करते हो, या इतना स्मोक मत किया करो, गलत बात है, हेल्थ खराब हो जाएगी, इतनी दवाइयां चल रही हैं, ब्लड प्रेशर भी चल रहा है, ये है. अभी क्या हुआ, आपने ये मैनिफेस्ट कर दिया उसकी जिंदगी में, है ना. अगर उसको नहीं भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा, तो इमोशंस के साथ जब सेंटेंसेस बोले जाते हैं तो वो एक्चुअल हो जाते हैं. तो इसीलिए बार बार मैं बोलती हूँ चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स. कभी कभी दिल नहीं भी कर रहा होता है कोई ऐसी चीज बोलने का, क्योंकि आप अंदर से सैड होते हो, लेकिन अपने दिमाग में चॉइस ऑफ वर्ड्स को आप चूज कर लो. लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी, ऐसी चीज बोल लो, है ना. आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड विद एवरी वन एंड विद द होल वर्ल्ड. आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, विद एवरी वन एंड विद द होल वर्ल्ड. आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो ना. दूसरे इंसान ने आपके ऊपर चिल्लाया, लेकिन आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप जाके उसको चिल्ला नहीं रहे हो वापस. इसका मतलब है आप फोर्स और कोएर्जन नहीं लगा रहे, है ना. कोएर्जन कोएर्जन का मतलब ये होता है प्रेशर लगाना. फिजिक्स में ये वर्ड हम यूज करते हैं. सो वो फोर्स लगाना, वो बार बार जाके बोलना, एक ही चीज बोलना, आज तुमने फिर से दारू पी ली, आज तुमने फिर से स्मोक किया, आज तुमने फिर से अपने ड्रग्स किया है, कुछ किया है. बार बार यही चीज सोचने बोलने की जरूरत ही नहीं है ना. फिर उस पे हमको बहुत सुंदर सा स्टेटमेंट अभी दिया था, आई थिंक परसों वाले परसों जो हमने कंटेंट किया था उसमें था दैट आप अपने ऊपर वर्क करो. वो चीज आप भी बोल बोल के अगले की छुड़वा सकते हो, या अगला भी अपने आप को बोले. अगर वो इस जर्नी में है तब तो वो खुद ही कर लेगा, लेकिन अगर वो इस जर्नी में नहीं है तो दूसरा हेट्रो सजेशन से भी बहुत ज्यादा वर्क होता है. हेट्रो सजेशन के हमने अमेजिंग एग्जाम्पल्स देखे हैं इसमें, है ना. कई बार दूसरे इंसान की सक्सेस, आप अपने स्पाउस को देखना चाहते हो कि वो बहुत अच्छी हेल्थ में रहे, आप अपने बच्चों को देखना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स को देखना चाहते हो कि वो बहुत अच्छी हेल्थ में रहें, बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत ग्रो करें. आप अपने दोस्तों को देखना चाहते हो, रिश्तेदारों को, कि उनकी जॉब लग जाए, उनकी शादी हो जाए. ऐसे बहुत सारे प्रेयर्स होते हैं हमारे अंदर जो हमारे अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो लव्ड वंस है, हमारी फर्स्ट सर्कल ऑफ लव है. तो मे बी दे आर नॉट इन दैट जोन ऑफ लाइक आप परेशान हो जाते हो उनकी वजह से, है ना. ऑब्वियसली कोई अगर दिन रात सुबह शाम किसी के साथ रह रहे हो और उसका कोई ऐसा हैबिट है, या उसका कोई चलो हैबिट नहीं भी है बट थॉट प्रोसेस है, या उसके अंदर बहुत ज्यादा एंगर है ना, तो आप परेशान हो जाते हो और आप उसी में ड्वेल करते रहते हो पूरे टाइम कि ये मैंने बोलना है तो उसका जवाब ऐसे ही आना है, मुझे पता है, मुझे पता है उसका, मुझे पता है उसका रिएक्शन, है ना. तो वो हम क्रिएट कर रहे हैं और ज्यादा. तो इंस्टेड हम अपना स्टेटमेंट बदल देंगे. तो हेट्रो सजेशन उतने ही पावरफुल होते हैं जितने ऑटो सजेशंस. ठीक है. सो इसलिए आप किसी और के लिए भी क्या सोच रहे हो उसको कंट्रोल कर लो. यही तो हमको इस चैप्टर में बताया है ना. हमको वो मदर एंड डॉटर का एग्जाम्पल बताया. मदर एंड डॉटर डॉटर एक न्यूयॉर्क में थी, एक एलए में थी. इतना डिस्टेंस था उनके दोनों में ज्योग्राफिकली,
लेकिन मदर की सर्जरी हो रही थी, और सर्जरी उस जमाने में बहुत बड़ी चीज होती है ना। मतलब अभी तो फटाफट आजकल छोटी मोटी सर्जरी से बड़े जल्दी रिकवर कर लेते हैं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर्जरीज उस जमाने में करना, जब इतना स्टेरिलाइज भी नहीं होता था तब। लुइस पाश्चर जब आए तो उन्होंने स्टेरिलाइजेशन को खोजा था, है ना। उसके पहले तक स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि बैक्टीरिया को उबलते हुए पानी में गर्म करके किसी भी चीज को हटा सकते हैं। तो वो लुइस पाश्चर ने पहली बार किया था। उसके पहले तक लोग इन्फेक्शन से मरते थे, बीमारी से नहीं मरते थे। सपोज किसी को कुछ कार्डियक अरेस्ट टाइप हो तो वो बीमारी से नहीं मरते थे, इन्फेक्शन से मरते थे। जब लुइस पाश्चर ने सारा स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस ढूंढा था, उसके बाद पता लगा लोगों को कि अच्छा, स्टेरलाइजेशन जैसी भी ठीक मतलब चीज होती है ना। और इस तरह से तब बच्चे भी बड़े बीमार होते थे, जैसे आजकल होता है। आजकल के बच्चों के एक स्टेरलाइजर आता है उनकी फीडिंग बॉटल्स के लिए, आप सब कुछ स्टेरलाइज कर सकते हो, है ना। जैसे आप, मैं देखती हूँ हेयर सलोन्स में एक ब्लू लाइट वाला स्टेरलाइजर पड़ा रहता है, बिकॉज सलोन्स में भी ये होता है ना, दैट दे यूज द सेम हेयर कॉम्ब ऑन एवरीबडी। वही वही हेयर कॉम्ब यूज करेंगे, तो हम लोग नहीं, हम अवर्स्ड होते हैं उससे ना, कि हमको नहीं ये वाली हेयर कॉम्ब यूज करनी। ये पता नहीं कितने लोगों के बालों में गई हुई है, तो वो फट से स्टेरलाइज कर देते हैं। तो तब तो वो सब था नहीं। तो उस वक्त बहुत बड़ी चीज होती थी कि किसी की सर्जरी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। बट ये जो बेटी थी, ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की वो थी क्लाइंट, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से पता था कि जहां पे भी मेरी मम्मी है, वहां पे उनका ऑपरेशन, कि उनका जो टूल, जो इंसान, जो एनवायरनमेंट जहां पे भी है, वो पूरा गॉड वर्ड्स है। और भगवान, गॉड इज फ्लोइंग थ्रू एवरी इंस्ट्रूमेंट दैट द डॉक्टर्स आर यूजिंग, एंड गॉड इज फ्लोइंग थ्रू द लाइफ ऑफ दैट डॉक्टर हु इज टचिंग माई मदर। जो डॉक्टर मेरी माँ को छू रहा है, उसके अंदर वो भगवान का रूप है, और वो भगवान का रूप बन के ही मेरी माँ को टच कर रहा है। उनका ऑपरेशन, उनकी रिकवरी मिरेकल की तरह हो रही है। उनका एक एक नर्व, एक एक मसल, एक एक टिश्यू, एक एक हड्डी, सब बिल्कुल परफेक्ट है, हेल्दी है, होल है, हील है, कंप्लीट है। वो लगातार ये बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई, सुबह और शाम। और उसकी मदर की सर्जरी के बाद जैसे उनकी रिकवरी थी, तो डॉक्टर्स भी अमेज थे। 2 हफ्ते में पूरी ठीक हो गई वो, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी, है ना। तो ये हेट्रोसजेशन ही तो हुआ ना, किसी और के लिए प्रे करना। तो इसीलिए आप लोग क्यों चिंता करते हो जब किसी और की लाइफ में भी कुछ ऐसे होता है। कल मैं एमएमबीजी में भी सुन रही थी, है ना, लिया तो शालिनी मैम ने इतने अच्छे से समझाया उसमें। तो उसमें भी बहुत परेशान हो रहे थे कि ये है वो है, तो नहीं, आपका थॉट प्रोसेस मैनिफेस्ट होगा उस इंसान में। हम अपने मन में ये मान के बैठे रहते हैं ना कि वो इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है, ये तो गलत है, ये सही है, तो आप उसको और मैनिफेस्ट करोगे। अगर अगर आप लगातार वही सोच रहे हो, तो वो आपको और मैनिफेस्ट करोगे उस पर्सन के बिहेवियर को। इंस्टेड आप टोन डाउन हो जाओ। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ये जो, और फोर्स करने की, बात करने की, रिएक्ट करने की, उस पे वापस चिल्लाने की, प्यार से भी बोलने की जरूरत नहीं है उस वक्त, है ना। जब दिमाग ठीक काम नहीं होता है, तो अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे आपके मुंह से, बिकॉज वाइब्रेशन उनका नेगेटिव ही होगा। बिकॉज अभी आप नेगेटिव जोन में हो, आपको कोई चीज है जो बहुत हर्ट की है, बुरी भी लगी है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एक लड़की का। तो एक एक लड़का था, उस लड़की के पीछे जान से पड़ा हुआ, उसको उससे शादी करनी थी, या पीछे पड़ा हुआ था कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मुझसे शादी कर लो, है ना, इस तरह का कुछ था। ये लड़की को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो कभी ऐसे डेट के लिए बोल रहा है, फोन करता रहता था उसको, डेट के लिए बोलता रहता था, उसके बिजनेस की प्लेस पे बार बार आ जाता था। तो उसको बड़ा बुरा लग रहा था कि मैं इसे पीछा कैसे छुड़ाऊं, है ना। और लड़कियों को फिर डर भी लगता है कि बहुत ज्यादा बोलो तो कहीं ये मुझे हार्म तो नहीं कर देगा, है ना, कहीं ऐसा नहीं हो मैं घर जा रही हूँ, रास्ते में आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ कर दे। तो कुछ नहीं। अगेन वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की क्लाइंट थी ना, तो उन्होंने क्या किया, दैट शी जस्ट डिक्रीड, डिक्रीड मतलब पावरफुल, जैसे लॉफुल स्टेटमेंट्स होते हैं, उस तरह से डिक्रीड एट फॉलोज दैट आई रिलीज दिस बॉय, जो भी उसका नाम था, आई रिलीज डैश 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 उसके नाम के साथ, एंड टू गॉड, यानी कि मैं इसको भगवान को समर्पित कर रही हूँ। ही इज इन हिज ट्रू प्लेस एट ऑल टाइम्स, वो सही जगह पे हर वक्त होगा। आई एम फ्री एंड ही इज फ्री, मैं उससे फ्री हूं और वो मुझसे फ्री है, ठीक है। एंड आई नाउ डिक्री दैट माई वर्ड्स गो फॉर्थ इन टू इन्फिनिट माइंड एंड इट ब्रिंग्स इट टू पास, और मैं ये स्ट्रांगली स्टेटमेंट ये बोल रही हूं कि मेरे जो शब्द हैं वो उसके इन्फिनिट माइंड में जाएंगे और हकीकत में बदल जाएंगे। इट इज सो, यानी कि तथास्तु।
Okay, so she said he vanished and that she had never seen, उसके बाद से उसने उसको कभी नहीं देखा। तो वो बोल रही है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जमीन धरती निगल गई उसको लाइक शी सेड दैट एज दो द ग्राउंड हैज swallowed him, कि मतलब उसके बाद वो ऐसा गायब हुआ, वो उसकी जिंदगी में कभी आया ही नहीं, है ना। तो डिक्री मेथड मतलब जैसे हम इंकैंटेशन फीलिंगली कुछ करते हैं ना, दैट यस आई डिटर्मिन, दैट डिटर्मिनेशन, हाँ डिक्री, ओके दैट इज वन वर्ड। डिटर्मिनेशन के साथ आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस नो मैटर व्हाट। Okay, I will only use my life to heal, bless, and prosper. So I will look after myself now. Okay, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये आपने डिक्री कर दिया अपने बारे में। तो उसने यही डिक्री किया कि मैं उस बंदे को रिलीज कर रही हूँ, भगवान के पास समर्पित कर दिया। वो बिल्कुल सही जगह पे होता है हर वक्त। आई एम फ्री, ही इज फ्री, मैं फ्री हूँ, वो फ्री है। और अब मैं डिक्री कर रही हूँ कि मेरे ये जो सारे शब्द हैं ये उसके इन्फिनिट माइंड में जाएंगे और हकीकत में बदल जाएंगे, एंड तथास्तु ऐसा हो चुका है। इट इज सो, मतलब इट इज डन। ओके, सो इस तरह से वो लड़का हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से चला गया, उसके बाद इसको कभी दिखाई नहीं। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बाइबल का कोट है कि जो भी चीज आप डिक्री करोगे वो आपकी जिंदगी में स्टैब्लिश हो जाएगी। स्टैब्लिश का मतलब परमानेंट, है ना, दैट वे। एंड द लाइट शैल शाइन अपॉन, और हर तरीके में उसकी लाइट शाइन होगी जो भी आपने स्टेटमेंट किया। सो दैट इज व्हाट इट इज। हाँ जी आरती। Serve yourself with scientific truth. Number one, be a mental engineer and use tried and proven techniques in building a grander and a greater life. Number two, your desire is your prayer. Picture the fulfillment of your desire now and feel its reality, and you will experience the joy of the answered prayer. Number three, desire to accomplish things the easy way with the sure aid of the mental science. मैंने ये दोनों स्पेशली हाईलाइट किए हुए हैं बिकॉज ये हमको समझने की जरूरत है। ऑफ कोर्स इसमें हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी हैं, बॉर्डॉन टेक्निक पढ़ी, आर्गुमेंटेटिव मेथड पढ़ा है, स्लीपिंग टेक्निक पढ़ी जो हम बहुत यूज भी करते हैं, स्लीपिंग टेक्निक सोने के पहले या अपने आप को स्लीपी ड्राउजी स्टेट में ले जाना। विजुअलाइजेशन टेक्निक हमको पता है क्या होती है, तो हमको बहुत सारी टेक्निक्स ऑलरेडी मालूम है जो हम यूज करते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो आपकी डिजायर है, जो आपकी चाह है, डिजायर मतलब आप चाहते क्या हो, है ना, जो आप रियली चाहते हो, तो योर डिजायर इज योर प्रेयर, वो आपकी प्रेयर होती है। प्रेयर का मतलब ये होता है कि आपका डिजायर, योर थॉट इज योर प्रेयर, योर डिजायर इज योर प्रेयर। डॉक्टर जोसेफ पर्फी ऐसी बातें करते हैं, इन्होंने अपनी सारी किताबों में ये लिखा हुआ है, योर थॉट इज योर प्रेयर एंड योर डिजायर इज योर प्रेयर। सो योर डिजायर इज योर प्रेयर, पिक्चर द फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर नाउ। इस वक्त आपका वो डिजायर हो चुका है, आप उस घर में रह रहे हो, आप बहुत हेल्दी हो गए हो, आपकी रिलेशनशिप अमेजिंग हो गई है, आपकी शादी हो चुकी है और आप कैसा फील कर रहे हो, क्या क्या चीजें कर रहे हो, उसमें वक्त बिताओ। ठीक है, दैट इट इज ऑलरेडी अ रियलिटी नाउ एंड यू विल एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ योर आंसर्ड प्रेयर। और आप देखोगे कितनी जल्दी आपकी प्रेयर आंसर होती है। तो हम लोग बहुत रेजिस्टेंस से कभी कभी काम कर रहे होते हैं कि ये नहीं हुआ है, तो फिर इसलिए वो नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड वो नहीं करता जो सही है, वो करता है जो रिपीटिशन होती है। सो इसीलिए ये समझना जरूरी है। दूसरा, डिजायर टू अकम्प्लिश थिंग्स द इजी वे, मतलब वो कहते हैं ना लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस, दैट आई कुड अचीव दिस विद ईज। हमेशा ये होता है, आई वो सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ जिनको भी अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, दैट आई एम रिसीविंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ विद ईज एंड जॉय डूइंग व्हाट आई लव। तो उसमें रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, विद ईज एंड जॉय, खुशी भी है और आसान भी है। तो ये चीज बार बार, इन लाइफ इज ब्यूटीफुल इजी एंड एफर्टलेस, ये वाला मैंने एफर्मेशन आपको वैसे भी दे रखा है कि आप रेपिटेडली ये करो, दैट माई लाइफ इज ब्यूटीफुल इजी एंड एफर्टलेस, इजी एंड एफर्टलेस, इट्स ब्यूटीफुल इजी एंड एफर्टलेस। तो किसी भी चीज में फोर्स, कोएर्जन, ओ गॉड दिस दैट, वो वाली लाइफ ही नहीं होगी। You'll be calm, you'll be easy, you'll know that it will happen just the right way. Okay, so that way, हाँ जी आगे। Number four, you can build radiant health, success, and happiness by the thoughts you think in the hidden studio of your mind. Number five, experiment scientifically until you personally prove that
There is always a direct response from the infinite intelligence of your subconscious mind to your conscious thinking. Number six, feel the joy and restfulness in foreseeing the certain accomplishment of your desire. Any mental picture which you have in your mind is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Number seven, a mental picture is worth 1,000 words. Your subconscious will bring to pass any picture held in the mind backed by faith. Number eight, avoid all effort or mental correction in prayer. Coercion. Coercion in prayer. Get into a sleepy, drowsy state and lull yourself to sleep, feeling and knowing that your prayer is answered. Number nine, remember that the thankful heart is always close to the riches of the universe. Number 10, to affirm is to state that it is so. And as you maintain this attitude of mind as true, regardless of all evidence to the contrary, you will receive an answer to your prayer. Number 11, generate electronic waves of harmony, health, and peace by thinking of the love and the glory of God. Number 12, what you decree and feel as true will come to pass. Decree harmony, health, peace, and abundance. Yeah. Thank you, Aarti. This is all we'll be reading. Thank you. Thank you so much for reading so beautifully. सो देर आर इसमें मेथड्स में जो जो मेंटल मूवी मेथड और वो सारे जो थे वो सब इसमें यही बताया हुआ है कि उनमें ड्वेल करना सीखना है हमको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर अभी मैंने विजुलाइज किया उसके बाद मैंने आंख खोली तो मुझे लग रहा है अरे ये तो है नहीं। सो यू हैव टू कंटिन्यू बीइंग इन दैट फीलिंग ऑफ एज एन अचीवर एंड कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट आई एम एन ओवर अचीवर। ओके, इन एवरीथिंग दैट यू डू। जो हमारे थॉट्स हैं दे विल कम टू पास। जो आपको अपने मेंटली अपने आप को देखना है एंड लल योरसेल्फ टू स्लीप, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ना, विद दैट थॉट जो आपको चाहिए जो भी है। और इसमें पावरफुल दो तीन हमारे इस वाले चैप्टर में वो थे। एक तो था एडिक्शन वाला और एक था दैट I have that wealth now. I give thanks for all my wealth now. So we can maybe in that one sentence, can anybody put it? पिट्टी जी आप डाल दोगे ग्रुप में? Exactly जैसे डॉक्टर मर्फी ने बोला था वैसे ही, है ना? Ma'am, दो, I'll do it. ओके है मैम। ना, दो स्टेटमेंट्स है जो बहुत पावरफुल है। जिन लोगों को मनी का स्ट्रगल है वो एक ही लाइन डालनी, वो पूरा वाला नहीं डालेंगे। सिर्फ एक लाइन जो उन्होंने बोला था कि बार बार रिपीटेडली बोलो और ये बोलते बोलते सो जाओ। और दूसरा उन्होंने बोला था अगर घर में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको जो भी किसी भी तरह की एडिक्शन है, एडिक्शन कुछ भी हो सकती है, सोशल मीडिया की हो सकती है, मूवीज देखने की, जरूरत से ज्यादा मूवीज देखने की एडिक्शन हो सकती है, मीठा खाने की एडिक्शन हो सकती है, सिगरेट की हो सकती है, अल्कोहल की हो सकती है, टोबैको की हो सकती है ना, किसी भी चीज की एडिक्शन है तो उनके लिए वो है दैट उनकी जिंदगी में बैलेंस आ जाए एंड दे रियली रियलाइज दैट वो फ्री हैं उन इन सब चीजों से। और जो उन्होंने जिस तरह से कहा था दैट जैसे उन्होंने बोला था कैथरीन एंड हेल्थ वाला जो था कैथरीन के लिए उन्होंने किया था ना, उनकी जो बहन है डॉक्टर Yes, जोसेफ मर्फी की जो सिस्टर थी उनका नाम था कैथरीन, और वो बहुत ज्यादा अपने गॉल ब्लैडर की सर्जरी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थी। तो उनको काम करने के लिए और उनकी मिराक्युलस रिकवरी के लिए एक और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने खुद किया था, उनकी खुद की बहन थी। तो ये तीन इसमें पावरफुल एफर्मेशंस हैं, एक हेल्थ का है, एक पैसे का है और एक एडिक्शन का है जो आप ऑटो सजेशन या हेट्रो सजेशन के रूप में कर सकते हो, है ना। ऑटो सजेशन मतलब अगर आपको खुद पता है अगर आपको यह एडिक्शन है, यू वांट टू कम आउट ऑफ इट और नहीं हो पा रहा है तो आप खुद कर लो। लेकिन अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसा है आप उनके लिए भी कर सकते हो। तो ये तीन पावरफुल एफर्मेशंस हैं हमारी। जो लास्ट वाली है आई थिंक दैट लड़का वाज चेजिंग दैट गर्ल, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच मैनेज्ड। जमाना बदल गया है अभी, है ना, तो उस तरह की वो चीज है नहीं।
तो लाइक बट वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट एफर्मेशंस मुझे लगी हैं, सो दैट वी कैन एक्चुअली टेक दीज एफर्मेशंस फ्रॉम दिस चैप्टर एंड पुट देम टुगेदर सो दैट वी कैन यूज देम। आपका जो भी, अगर आपको पैसे बहुत ज्यादा बनाने हैं तो आप वो वाला एफर्मेशन यूज कर लेना। और हेल्थ का अगर कोई चैलेंज है जिसमें हेट्रो सजेशन आपको देना है तो आप वो वाला कर सकते हो। ऑटो सजेशन है तो आप अपने आप को दैट आई एम होल हील कंप्लीट, एवरी नर्व, एवरी मसल, एवरी टिश्यू, एवरी फाइबर, of my being is whole, heal, healthy, and I'm recovering like a miracle. I have like God is penetrating into every cell of my body and healing me, repairing me, renewing me that way. तो अगर इस तरह से हम सोचेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ वैसा ही होगा। तो बट विद दिस वी, और बिल्कुल भी मेंटल कोएर्जन यानी कि एग्जर्ट नहीं करना है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जो चाहते हो उसको अपनी एफर्मेशन सेंटेंस बना लो। और टेक्निक ये होती है स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जाके, एंड देन यू कैन रिपीट इट ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, दैट इज ऑल वी नीड टू डू। लेकिन उसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना किसी भी चीज में मास्टरी नहीं आ सकती है। तो अगर कोई भी चीज करनी है तो आपको कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तभी जाके जिंदगी खूबसूरत बनती है। सो दैट वे। सो अब ये जो ये इसमें लिखा हुआ है ना, कल से हम फ्रेश न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। लाइफ वर्ड का मतलब ये होता है सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, पीस, लव, जॉय, वेल्थ, ये सारी चीजें, ये लाइफ वर्ड होता है। सो सबकॉन्शियस माइंड में तो है ही ये। अगर हम बोलते हैं आई वॉन्ट माई सबकॉन्शियस माइंड टू टेक ओवर और गॉड टू टेक ओवर, इसका मतलब यही होता है कि अब चीजें हील, रिपेयर और खुशियों वाली होंगी। Okay, so that is all we'll be reading today.